Hello everyone, let us look at the solutions to biology class 6 annual exam paper. Let us look at the objectives first. MCQs, the process in which only exchange of gases takes place. So remember over here it says only exchange of gases, right? So when you're saying only exchange of gases, what you have to mention is breathing, not respiration. So in respiration it does not happen. खाली हम exchange of gases की बात कर रहे हैं, इसीलिए breathing होगा. What is the function of WBCs? They help in fighting the infection. Frogs respire in water through moist skin. Many of you have written gills. No, tadpoles respire through gills. Frogs respire through the moist skin. The process by which a seed becomes active is germination. What is the percentage of carbon dioxide in expired air? 4%. An instrument used to measure blood pressure, sphygmomanometer. Types of roots present in parasitic plants, Haustoria. Male sex cells are produced in the pollen grain. Many of you have written anther. Anthers produce pollen grains, and pollen grains produce the male reproductive cells. The function of alveoli is to help in the exchange of gases. RBCs are red in color due to the presence of hemoglobin. Now let us look at the fill in the blanks. Heart is surrounded by a double layered membrane called as the pericardium. The presence of special features which enable an organism to live in a particular habitat is called as adaptation. Dash is also called as the voice box, larynx. Fruit is a ripened ovary. Then dash are plants that grow in a dry habitat. So some of you have written cactus. Though we are looking of the category of plants, they are called as xerophytes. Right? Okay, so then name the following. It helps the fish in maintaining buoyancy in water. That is the swim bladder. That is how they are going to float near the surface or go down under. That is controlled by the swim bladder. It prevents the food from entering the windpipe during swallowing. It is epiglottis. Circulation of blood between heart and lungs is called as pulmonary circulation. The fusion of the male gamete with the female gamete to form zygote is called as fertilization. Chambers of the heart that receive blood from different parts of the body are auricles. Many of you have written auricles and ventricles. No, only the auricles are the receiving chambers. Now let us look at the match the columns. So thalamus is, it bears the floral whorls in rings. Pharynx is the common passage for food and air. Aorta is the largest artery. Mountain plants have needle-shaped leaves. Habitat, the place where an organism lives in nature. So many of you have written thalamus as the stalk of the flower. No, it is called as the pedicel. Thalamus is what bears all the floral whorls. Now let us move on to the next part. Okay. So state one function of the following. Hump of the camel. So what does the hump do? It stores reserve food in the form of fats. Rings of cartilage in trachea. They prevent the trachea from collapsing when the air is not present. In the absence of air, they prevent the cartilage, the trachea from collapsing in. वो नहीं तो पूरा दब जाएगा. सेप्टम लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट को सेपरेट करता है सो दैट देयर इज नो मिक्सिंग of oxygenated and deoxygenated blood. कुछ ने लिखा है it separates the auricles and ventricles. No, that is not true. It separates the left side of the heart from the right side of the heart. Vena cava, it brings deoxygenated blood from all the parts of the body. So जो भी पूरा बॉडी का रीजन है वहाँ से ये लेकर आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट तक पहुँचाते हैं.
What is the function of the pollen grains? They produce the male reproductive cell. बहुत सारे लोगों ने लिखा है दे हेल्प इन पॉलिनेशन. अरे उनके ट्रांसफर को पॉलिनेशन बोला जाता है, उनका फंक्शन नहीं है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर दैट अकर्स इन प्लांट्स. पोलन ग्रेन्स का फंक्शन पूछा है यहाँ पर. व्हाट इज द फंक्शन? सो फॉर फंक्शन you have to write they produce the male reproductive cell. Differentiate on the following basis. So complete and incomplete flower की definition क्या है? Complete flower में all whorls are present, whereas in incomplete flowers one or more whorls are absent. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा है कि इसमें या तो एंड्रोशियम एब्सेंट होता है या गाइनीशियम एब्सेंट होता है. वो इनकम्प्लीट, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की डेफिनेशन है. सो लर्न टू डिफरेंशिएट. वो एक ऐसा भी फ्लावर हो सकता है जिसमें ना एंड्रोशियम प्रेजेंट हो ना गाइनीशियम प्रेजेंट हो, खाली केलिक्स और कोरोला प्रेजेंट हो, ऐसे भी हो सकता है. तो उसको भी तो हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे. सो हियर यू हैव टू मेंशन वन और मोर वर्ल्स आर एब्सेंट. एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का खाली पूछा था प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं उसके बेसिस पर. तो हियर द प्रोडक्ट्स दैट आर फाउंड इन एरोबिक आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. यहाँ पर बनता है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. देन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन में खाली टाइप ऑफ ब्लड विच दे कैरी. सो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड एंड द पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड. उल्टा हो जाता है बिकॉज दे आर टेकिंग इट टू द लंग्स एंड ब्रिंगिंग द ब्लड बैक फ्रॉम द लंग्स. सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन में क्या है? आइदर द सेम फ्लावर, तो वो तो सेम प्लांट पे हो गए, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. तो सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स द पॉलिनेशन अकर्स इन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, आइदर द सेम फ्लावर और अ डिफरेंट फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट. क्रॉस पॉलिनेशन में इट हैज़ टू बी अ फ्लावर इन अ डिफरेंट प्लांट बट इट हैज़ टू बी ऑफ द सेम टाइप. जैसे अगर हिबिस्कस है तो वो लोटस को जाकर के पॉलिनेट नहीं करेगा. हिबिस्कस का पॉलिनेशन हिबिस्कस से ही होगा. तो सेम टाइप मेंशन करना बहुत ज़रूरी है क्रॉस पॉलिनेशन में. ओके. फिर एग्जाम्पल देना था. वाटर लिली लोटस तो बहुत लोगों ने लिखा, हाइड्रिला भी लिखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बटरकप लिखा. बटरकप इज नॉट एट ऑल अ हाइड्रोफाइट. हाइड्रोफिटिक प्लांट नहीं है, वो तो वैलिसिनेरिया है. ओके. देन लेट अस डिफाइन दिस. रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या क्या कीवर्ड्स लिखने चाहिए थे? बहुत सारे लोगों ने लिखा इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एयर गोज इन एंड एयर कम्स आउट. नो, दैट इज ब्रीदिंग. सो इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कि फूड का ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच यू शुड हैव रिटन. एंटीजेंस, बहुत सारे लोगों ने लिखा एंटीजेंस आर फाउंड ऑन द आरबीसी and they give the blood group. No, that is not a definition of antigens. वो भी एंटीजन है, बट एंटीजन का काम क्या होता है? हर खाली ए बी ओ और ए बी ही एंटीजन नहीं है. बहुत तरीके के एंटीजन है. जो ब्लड ग्रुप जिससे पता चलता है वो भी एक टाइप का एंटीजन है, करेक्ट, बट दैट इज नॉट देयर फंक्शन. ये उनका फंक्शन है कि ऐसे ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है. तो अगर तुम देखोगे तो एंटीजन ए है तो वो एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस करता है, एंटीजन बी है तो वो एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस करता है. इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन भी था यहाँ पे आगे. ओके. सो दिस इज द डेफिनेशन विच यू शुड हैव रिटन. थर्ड वन, व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स? एक्वेटिक प्लांट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स. व्हाट इज पल्स? सो पल्स में लिखना चाहिए कि ये आर्टरीज का थ्रॉब. बहुत सारे लोगों ने कहा पल्स इज फेल्ट इन द रिस्ट और साइड ऑफ द नेक. ये पूछा ही नहीं. डेफिनेशन है. डिफाइन मीन्स यू हैव टू राइट व्हाट इज पल्स. सो इट इज द थ्रॉबिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन देम. जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है तो उनकी वॉल्स में हम थ्रॉबिंग फील कर सकते हैं. जब ब्लड उसमें से पास हो रहा होता है तो उसको हम पल्स बोलते हैं. ठीक है, समझ में आई बात. फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में लिखना था दीज फ्लावर्स हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का डेफिनेशन है. यस, अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज एन इनकम्प्लीट फ्लावर, बट एवरी इनकम्प्लीट फ्लावर इज नॉट अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. सो रिमेंबर दैट. ओके. चलो
अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज में क्या, दे ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स दे टेक द ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये डिफरेंस है। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स थिन वॉल्ड होते हैं। आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। एनी ऑफ दीज 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस यू कैन राइट। व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ ब्लड? ब्लड के क्या क्या फंक्शन है? एक तो ये फूड और ऑक्सीजन लेकर के जाता है बॉडी के हर पार्ट में, इन्फेक्शन से लड़ता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर के जाता है एक्सक्रीशन के लिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस आउट ऑफ विच यू कुड हैव रिटन एनी 2. What is the function of valves? They prevent the backflow of blood, जिससे blood एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे. So if you have written backflow, they prevent backflow of blood, this is also correct. Or if you have written if they permit the blood to flow only in one direction, that is also correct. Okay, now let us take up the next part. So here you will be able to understand better. Okay, so Ria is 12 years old. Her father met with an accident. Her father's blood group was B and her mother had O. So first जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि what are the 4 blood groups. So बहुत सारे लोगों ने कहा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव. अरे वो ब्लड ग्रुप नहीं है, वो एक उसके अंदर एक फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है. ये जो लिखा गया है ये इसको ब्लड ग्रुप का नाम खाली A B O ये ब्लड ग्रुप के नाम है, ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप में ऐड किया जाता है. बट व्हेन समवन आस्क्स यू द 4 मेन ब्लड ग्रुप्स यू सिंपली मेंशन A B एंड O. Can Ria's mother donate blood to her father? Yes, she can donate. Her mother has O group. जो बहुत सारे लोगों ने लिखा है शी कैन डोनेट ब्लड बिकॉज शी इज़ अ यूनिवर्सल डोनर. बट यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है ये तुमको मेंशन करना था. तो लिखना था कि शी कैन डोनेट ब्लड बिकॉज ओ ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजेंस एंड हेंस दे कैन डोनेट टू अदर ब्लड ग्रुप्स. ठीक है. सेम वे विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड वायर. तो तुमने लिख दिया ए बी बिकॉज इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी अदर ग्रुप. तो ये तो यहाँ लिखा ही है यूनिवर्सल रेसिपिएंट का, तो मतलब ही यही है कि वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं. वाई लिखना चाहिए बिकॉज इट हैज़ नो एंटीबॉडीज सो इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप. नेम द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन रियाज फादर्स ब्लड ग्रुप बी. तो ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा, मतलब ए एंटीजन को वो अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर. ठीक है. Now let us look at the image of an aerial animal. Why do aerial animals have streamlined body? Because it helps them to reduce the friction while they are flying through the air. Same reasoning जो aquatic animals होते हैं जैसे fishes हैं उनकी body भी streamline इसीलिए होती है because it helps to reduce the friction while swimming through water. What type of bones do aerial animals have and how does it help them in flying? तो यहाँ जो लिखना चाहिए था वो ये लिखना है हॉलो या न्यूमैटिक बोन्स, क्योंकि पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ बोन्स. टाइप ऑफ बोन्स को स्पेसिफाई किया गया है इसीलिए यू हैव टू मेंशन कि ये न्यूमैटिक बोन्स हैं. दे मेक द बॉडी लाइटर. हाउ डज इट हेल्प देम इन फ्लाइंग? बिकॉज दे आर हॉलो सो दे हेल्प द बॉडी टू बिकम लाइटर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेदर इन एरियल एनिमल्स? सो दो पार्ट थे इसके. एक में लिखना है हॉलो या न्यूमैटिक बोन्स है, दूसरे में लिखना है दे मेक द बॉडी लाइटर. तो फेदर्स का क्या फंक्शन होता है? एक तो इट हेल्प्स देम इन फ्लाइंग और दूसरा है कीप देम वार्म. तो इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन लिखने से चलेगा. लंग्स ऑफ एरियल एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विथ एयर सैक्स. 4 लिम्स आर मॉडिफाइड. बहुत सारे लोगों ने लिखा है हैंड. अरे उनके हैंड कहाँ होते हैं? उन लोग तो हैंड नहीं है ना. 4 लिम्स हैं, आगे वाले जो लिम्स हैं उनके हाथ और पैर रहते. हाथ तो नहीं है उनके. हाथ है हम लोगों के हाथ है, ठीक है ना. उन लोगों के हाथ नहीं लिख सकते.
A cactus grows in hot and dry desert. Why are the leaves of cactus modified into spines? तो लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि वो उनको खाए नहीं, वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कांटे की वजह से, और क्योंकि वो कांटे के हैं तो इसीलिए उनको एनिमल्स खा नहीं पाते, लेकिन एनिमल्स न खा पाए इसलिए वो नहीं मॉडिफाई होते। तो पूछा गया वाई आर दे मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस? सो दे आर मॉडिफाइड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि लीव्स से सबसे ज़्यादा वाटर लॉस होता है। Why do cactus have waxy coating on the stem? Again to prevent loss of water, क्योंकि प्लांट के सरफेस, अब लीव्स तो नहीं है तो स्टेम के सरफेस से वाटर लॉस हो सकता है, लेकिन स्टेम के ऊपर ये जो वैक्सी कोटिंग होती है उसके वजह से लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन इज प्रिवेंटेड और रिड्यूस्ड। What function is performed by green stem in cactus? तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने लिखा है स्टोर्स वाटर एंड फूड, नहीं भाई, यहाँ पूछा है ग्रीन स्टेम का मेंशन किया गया, इसका मतलब है ग्रीन स्टेम का काम है फोटोसिंथेसिस करना। Why do cactus plants have long roots? So that they can absorb water from deep under the soil. डेजर्ट में पानी की कमी होती है, पानी बहुत नीचे से खोज के लाना पड़ता है, इसीलिए उनकी रूट्स भी बहुत डीप होती है। टू एग्जाम्पल, कैक्टस के अलावा तो बहुत सारे लोगों ने कैक्टस ही लिख दिया है, अकेशिया या बबुल दोनों सेम ही है, ओपनशिया है, अगेव है, पाम है, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो अपनशिया जो है ये भी एक टाइप का कैक्ट, ये जो ज़्यादातर रहते हैं इनके ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो कैक्टाई होते हैं, बट ओपनशिया ठीक है डिफरेंट टाइप का कैक्टस है। बट okay, if someone has written cactus then we are not giving marks, but okay, if you are writing opensia that means you're talking about a different type of cactus, so we'll give you marks. Let us move on to the next part, which is over here, the diagram that we can see over here. What happens over here is ये लेबलिंग करना था इसको। यहाँ पर ए है ट्रैकिया, ये नेजल कैविटी है, ये लंग्स थे और ये एल्विलाई थे यहाँ पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस? हेयर एंड म्यूकस का काम होता है ये डस्ट को, जर्म्स को जो अंदर हम सांस लेते हैं उसको ट्रैप करते हैं, और जो नाक में जो हवा जा रही होती है उसको भी मॉइसन कर देते हैं, क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट होता है म्यूकस में, तो उसको मॉइसन कर देते हैं जिससे वो अंदर आराम से जा सके। What is the opening of the trachea called? It is called as glottis. ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज, एस्मा, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कुछ भी इसमें लिखने से चलेगा। Alright, over here the diagram is given and 2 points of difference between inhalation and exhalation. So many have written inhalation is when you breathe in air and exhalation is when you breathe out air. तो ये तो यहाँ पे दिख रहा है। Okay, fine. If you have written that, it's not technically wrong. But what you are supposed to write over here is इस diagram से कि कैसे ये रिब केज है, डायफ्राम है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या निकल रहा है, क्या जा रहा है, कैसे ऊपर हो रहा है, नीचे। तो रिब्स दे मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, and in exhalation they will move inwards and downwards. तो रिब्स का ऐसा मूवमेंट होता है, ये मेंशन करना चाहिए था। डायफ्राम का कैसे मूवमेंट होता है? डायफ्राम नीचे जाता है इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में डायफ्राम ऊपर आता है। चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है इनहेलेशन में, चेस्ट कैविटी यहाँ दिख रहा है जो डायग्राम में, वो ही हमें बताना है। चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, ये वाले डिफरेंसेस लिखने चाहिए थे। देन व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इन और गोज आउट इन वन ब्रेथ। एक बार जब हम सांस लेते हैं तो कितनी हवा हमारे अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, दैट डिफाइंस द टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है ये इसका फिल इन द ब्लैंक्स।
Lungs are protected by the rib cage and surrounded by double membrane called pleura या pleural membrane भी अगर किसी ने लिखा है वो भी ठीक है. The lungs rest on a dome-shaped muscle called diaphragm. Each lung has a large number of alveoli. Right? Okay. Next question. Why do hibiscus flowers have brightly colored petals? तो ये एक insect pollinated flower है, तो इसको insects को attract करने के लिए they have brightly colored petals. Is hibiscus a unisexual or bisexual flower? It is a bisexual flower because both androecium and gynoecium, both of them are present in this flower. Why is a flower important to a plant? फ्लावर जो है किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि प्लांट्स के मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑड वन आउट, जाइगोट इज द ऑड वन आउट. वाई एंड गिव रीजन फॉर अदर्स. अदर्स का बताना है, जाइगोट क्या है वो बताने की जरूरत नहीं. Others are parts of a flower. Zygote is not a part of the flower. Sepal, petal, stamen, pistil, they belong to the four whorls of the flower. Zygote does not belong to any of the whorls of the flower. वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है. Alright. Now, Rita has sown the seeds of pea. After few days, she observed that the seeds have started germinating. Pea is a dicot. Dicot है, मटर को देखने से तुम उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो, तो वो dicot seed है. What is the first structure? ये बहुत लोगों ने गलत लिखा है. The first structure that emerges is the radicle and it gives rise to the root system. सबसे पहले root system बनता है, उसके बाद plumule आता है जो shoot system को develop करता है. 2 points of difference between epigeal and hypogeal. तो सबसे पहले epigeal में cotyledons जो हैं वो ground के ऊपर रहते हैं. hypogeal में cotyledons जो हैं वो ground के नीचे रहते हैं. एपीजीएल में हाइपोकोटाइल एलोंगेट होता है, हाइपोजीएल में एपिकोटाइल एलोंगेट होता है. किसी ने लिखा है इसमें हाइपोकोटाइल गिव्स राइज टू शूट सिस्टम, दिस गिव्स राइज टू रूट सिस्टम. अरे भाई वैसा नहीं है. ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल दोनों प्रेजेंट है यहाँ पर. दोनों ही रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को जैसा रेडिकल और प्लूम्यूल के पोजिशन के हिसाब से दे विल गिव राइज टू रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. बट मेन जो डिफरेंस है वो ये दो डिफरेंसेस हैं. वेयर इज द फूड स्टोर्ड इन अ पी सीड? कॉटिलेडन्स. अ जर्मिनेटिंग सीड नीड्स ऑक्सीजन या एयर फॉर रेस्पिरेशन, खास तौर पर मेंशन किया है. तो वाटर मत लिखो, रेस्पिरेशन के लिए वाटर नहीं चाहिए उसको, रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए या एयर चाहिए. सो आई होप दैट योर डाउट्स आर ऑल क्लियर and you have been able to get the correct answers. Thank you so much for watching.